Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education, and I am working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children. This is a course of MA Special Education with an area of specialization of mentally challenged. The course code is SPED 4139 and its credit hours are 3. Today's lesson title is Cognitive Theories into Practice. We will discuss in today's lecture about Piaget's theory and its relationship with mentally challenged children, and later on we will also discuss Piaget's application to mathematics. Piagetian framework suggested that the following characteristics were associated with the persons who are mentally retarded. First one is the order of the stages are the same and the speed of evolution varies according to the environment. So फर्स्ट पॉइंट में पियाजे ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि जो स्टेजेस का ऑर्डर है, 4 डिफरेंट स्टेजेस आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं पियाजे थ्योरी की, तो उनकी जो 4 स्टेजेस का ऑर्डर है वो सेम होता है, उसकी ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट सेम है मेंटली रिटार्डेड बच्चों में और विदाउट मेंटल रिटार्डेशन स्टूडेंट्स में बच्चों में. हाउएवर जो एवोल्यूशन की स्पीड है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर. सेकंड पॉइंट है अ चाइल्ड विदाउट रिटार्डेशन ट्राइज टू रिजॉल्व एंड असिमिलेट फैक्ट्स यूजिंग न्यू हाइपोथेसिस, whereas the retarded child lacks interest, curiosity and general activity and seems to give up any attempt to organize new information. आपने पियाजे की थ्योरी का दूसरा पोर्शन जो है उसमें उसकी अकोमोडेशन और असिमिलेशन से रिलेटेड पढ़ा है. तो पियाजे के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स विद मेंटल रिटार्डेशन होते हैं उनको असिमिलेशन और अकोमोडेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ड्यू टू देयर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, और चूँकि उनकी जनरल एक्टिविटी भी बहुत स्लो होती है तो उस वजह से वो न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड नाउ टुडे in this lecture we are going to discuss the practical aspects of cognitive theories, especially in the context of mathematics. So the first point is application of Piaget's stages in mathematics. You have already learned about that there are 4 stages in Piaget's theory. First one is sensory motor and it ranges from birth to age 2. The second stage is pre-operational stage and it is about age 2 to age 7. Third stage is concrete operational and it ranges from age 7 to age 11. And fourth one is formal operational stage and it ranges from 11 to 15 years. Although everyone progresses through these stages differently, Piaget believed that every child would eventually experience every stage of thinking in the sequence and no one would miss a stage because one would not be able to develop to the next stage until they understand the previous one. It's just a matter of time. It means कि कुछ बच्चे जो हैं वो डिलेड जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जिनकी although उनकी डिलेड डेवलपमेंट होती है but still they have to go through from these 4 stages with different patterns. बट वो इन चारों में से गुजरेंगे ज़रूर और इसको एक्सपीरियंस करेंगे. नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज बाय स्टेज वी विल डिस्कस द Piaget's theory. फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज एंड मैथमेटिक्स. Piaget's views about sensory motor stage, and in these views he expresses that in this stage
usually children use movement and 5 senses in order to develop their learning. फर्स्ट फ्यू वीक्स में जब बिल्कुल लर्निंग फेज में बच्चा होता है तो अकॉर्डिंग टू पियाजे वो डिफरेंट हाउ टू ट्रैक ऑब्जेक्ट एंड टू गेट अ होल्ड ऑफ देम बाय कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग which can help the parts of the brain that process and connect visual and motor behaviors to start developing. क्योंकि बिल्कुल फ्यू वीक्स के जो बच्चा होता है उसमें उसकी विजुअल और मोटर बिहेवियर के कनेक्शन स्टार्ट होता है और वहां से उसके लर्निंग बिहेवियर जो है वो स्टार्ट होता है. Once the infants recognize that learning follows by repetition, then they will start learning how to plan in advance and reach for the objects that they want by using a more efficient approach. Piaget claimed that infants are able to link numbers to objects at this stage. When we talk about in terms of mathematics, then Piaget claimed that at this stage children are able to link numbers to the objects, because आपको पता है कि 2 साल तक का जो बच्चा है वो आजकल बच्चों की लर्निंग और उनकी डेवलपमेंट काफ़ी एडवांस है और 2 इयर्स का जो चाइल्ड है उसमें नंबर और नंबर्स के साथ उसमें ऑब्जेक्ट्स को लिंक करना उसे अच्छी तरह से आ चुका होता है. एंड देयर इज ऑल्सो एविडेंस दैट चिल्ड्रन हैव already acquired some knowledge of the concepts of the numbers and counting, कि वो उनके नंबर इस कॉन्सेप्ट को एक्वायर कर चुके होते हैं. In order to develop the mathematical skills of infants at this stage, अगर आप बच्चे को बहुत क्विक मैथमेटिकल स्किल्स में करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर एजुकेटर्स या पेरेंट्स जो हैं या केयर गिवर्स जो होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं जो कि नंबर्स और काउंटिंग को इंक्लूड कर रही हों. लाइक बहुत अगर बलून्स के साथ बच्चा खेल रहा है, अगर बॉल्स के साथ बच्चा खेल रहा है तो उसके साथ साथ उसको खिलाते हुए केयर गिवर्स इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं कि वो उसको साथ साथ काउंट करवा रहे हों, लाइक 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल. जब वो काउंटिंग को और नंबर्स को उनके साथ कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं तो उससे उनकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुकेटर्स कैन रीड बुक्स दैट हैव पिक्टोग्राम्स इन देम, बिकॉज इस स्टेज पे बच्चा जो है वो पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं उसको. तो ऐसी स्टोरी बुक्स जिनके अंदर पिक्टोग्राम्स पिक्चर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हों उनकी रीडिंग बच्चे को करवाई जा सकती है और पेरेंट्स रीड आउट करते हैं फॉर द चाइल्ड, और जिसमें इंक्लूड होता है नंबर्स इंक्लूड होते हैं. सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड मैथमेटिक्स. यहाँ पर इस स्टेज के बारे में पियाजे ने ये कहा है कि इस स्टेज के ऊपर लैंग्वेज एबिलिटी बच्चा सिंबॉलिक थॉट और ईगोसेंट्रिक होता है, पर्सपेक्टिव्स एंड सम डिग्री ऑफ लॉजिक एट अराउंड एज 2 to age 7. तो यहाँ तक इस एज में बच्चा जो है वो काफ़ी हद तक लॉजिकल थिंकिंग भी एज 7 के करीब पहुँचकर उसके अंदर स्टार्ट हो चुकी होती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन लर्न हाउ टू एम्प्लॉय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दैट इंटीग्रेट विद ऑब्जेक्ट्स सच एज नंबर्स ब्लॉक्स. आप इस किस्म की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं और बल्कि वो बच्चा इस काबिल होता है कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है अप टिल एज 7, जिसमें डिफरेंट नंबर्स और ब्लॉक्स यूज़ हो रहे होते हैं और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करते हुए वो डिफरेंट ब्लॉक्स को बनाता है, डिफरेंट शेप्स के अंदर उसको वो इंसर्ट कर सकता है. ऑल्दो चिल्ड्रन हैव ऑलरेडी गेन्ड सम नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ numbers, they only have limited logic association and cannot process operation in a reverse order. For example, children who understand that 5 plus 3 is equal to 8 may not have the mindset that 3 plus 5 is equal to 8. Also, according to यानी रिवर्स एक्शन करने में वो ऑटोमेटिकली रिवर्स एक्शन करने में वो इस स्टेज तक पुअर होते हैं. According to Piaget, this is because children can only identify one aspect or dimension of an object with the loss of other aspect. At a time बच्चा जो है वो एक aspect को, एक perspective को focus कर रहा होता है, दूसरे को नहीं कर रहा होता. In order to enhance the children's mathematical capabilities in this period, यानी एज जो एज 2 to 7 है, इसके अंदर मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए हम किस किस्म की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. Educators can ask them to build a specific object by using building blocks. While they are doing it, they can learn how to group them based on their identical features
and also help them understanding that there are always multiple methods of combining them together. So इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, टॉकिंग अबाउट दैट, तो उस किस्म की एक्टिविटीज़ में बच्चे जो हैं वो डिफरेंट तरीके से इन चीज़ों को सीखते हैं कि डिफरेंट तरह से भी ब्लॉक्स को कंबाइन किया जा सकता है, और जो आइडेंटिकल ब्लॉक्स होते हैं उनको कैसे ग्रुप करना है एक तरफ, और दूसरी तरह के दूसरे कलर के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको कैसे ग्रुप करना है कोई दूसरी बनाने के लिए. थर्ड स्टेज ऑफ प्याजे इन स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स. यहाँ पर इस एज के जो बच्चे हैं एज 7 to 11 ईयर्स, उसके लिए प्याजे का ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक्सेलरेट्स between ages 7 and 11. They can start using their 5 senses to distinguish objects, which can help them to identify 2 or 3 aspects of dimensions at once. यानी ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा जो है वो एट अ टाइम 2-3 टास्क जो है उनकी तरफ वो अपना ध्यान जो अपनी जो अटेंशन है उसको कर सकता है. फॉर इंस्टेंस, प्याजे यूज्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ pouring the same amount of liquid into different size containers. Children at this stage are able to notice the levels of liquid will be different based on the dimensions of the container. Like जो previous stage है उसमें अगर हम इस same एग्जाम्पल को वहाँ पर अप्लाई करें उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, लाइक 2 to 7 एज जो ग्रुप है उसमें अगर हम इस तरह से करें कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है लेकिन डिफरेंट साइजेस के कंटेनर्स हैं उसमें डालते हैं, तो उसमें प्रीवियस स्टेज में बच्चा जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड है. लेकिन इस स्टेज में जाकर बच्चा जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक ग्लास छोटा है और एक ग्लास बड़ा है अगर, तो उसमें या एक ग्लास जो है उसको कम भरा गया है और एक ग्लास को ज़्यादा भरा गया, तो इस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेता है कि सेम साइज और सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो दोनों ग्लासेस में डाली गई है. Children at this stage are able to notice the levels of liquid will be different based on the dimension of the container. Another major cognitive growth that occurs during this period is the ability of classification and seriation, to separate objects. Children learn classification by grouping objects based on similar features. यानी डिफरेंट सिमिलर फीचर्स की बेस पर जब उनको वो चीज़ों को ग्रुप करना स्टार्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. And acquire the ability of seriation by categorizing objects based on their increased or decreased value, such as length, width, volume, etc. यानी इस स्टेज पर बच्चे जो हैं वो ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल अगर वो उनका प्ले टाइम है तो उसमें वो इस तरह की चीज़ों को इस तरह से चीज़ों को अपने टॉयज़ को या वट एवर जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस के लिए, तो उसको उनको वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करते हैं कि बहुत छोटी चीज़ें जो हैं वो उनको उनसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी वाली चीज़ें जो हैं उनको लाइन अप कर रहे होते हैं, उसके या वॉल्यूम के हिसाब से या विड्थ के हिसाब से किसी भी तरह से जो है वो बच्चे उनको एक सीरीज़ में चीज़ों को करने के लिए वो एबिलिटीज़ उनमें डेवलप हो जाती हैं. इवन दो दे मे हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड सम बेसिक arithmetical operations, at this stage they do not know how to apply these concepts into solving math problems. For example, when they are being asked to count the pieces that are made of 3 rows of 5 building blocks, they do not know how to apply multiplication while counting. In other words, the abstract concepts of arithmetic must be directly related to physically available elements and operations. This also implies that they are still not capable of setting up a consistent system based on measurement at this stage. हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आजकल जो प्री प्राइमरी जो स्टेज है बच्चों की स्कूल में, प्ले ग्रुप स्टेज है, उसमें ही बच्चों को इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे उनकी मैथमेटिकल स्किल्स काफ़ी इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो समटाइम्स बिफोर टाइम भी बिफोर जो एज लिमिट प्याजे ने दी है इससे पहले भी उन चीज़ों को एक्वायर करने में के काबिल हो जाते हैं. बट ये कंपल्सरी नहीं होता. इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए प्याजे ने ये सजेस्ट किया है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो उनको मैथ्स के रूल्स को अप्लाई करना नहीं आता, बल्कि वो काउंट करके चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं. अगर वो मल्टीप्लाई आप करके सिंपली वो 3 5s मल्टीप्लाई करके 15 आंसर दे सकते हैं,
लेकिन उनको यहाँ पर ये इस स्टेज तक पता नहीं होता कि ये 3 5 आर किया जा सकता है। वो रोज को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं और काउंट करके उसका आंसर देने की ट्राई कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नेचर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो ग्रैस्प नहीं कर पाते इतना ज़्यादा। कॉन्क्रीट नेचर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिकल, उनको वो ग्रैस्प करते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एंड मैथमेटिक्स। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 11 years to 15 years, and at this stage children are able to form their own theories and construct their own mathematical concepts. यहाँ पर वो मैथमेटिकल थिंकिंग और डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में इंडिपेंडेंट हो चुका होता है बच्चा, और वो अपने लर्नड रूल्स को अप्लाई करने के काबिल हो चुका होता है। दे कैन ऑल्सो रिलेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स टू कंक्रीट सिचुएशंस नाउ। For example, when they encounter an algebra problem, they are now able to solve it by themselves instead of having a teacher to refer to a concrete condition. यानी उनको इतनी डिटेल से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं and they are able to solve by themselves. The reason that they can now develop abstract thought patterns into concrete situations is that they start building their reasoning skills, which includes clarification, इन्फ्रेंस, एवेलुएशन एंड एप्लीकेशन। सो उनकी रीजनिंग स्किल्स जब डेवलप हो चुकी होती हैं तो इसकी वजह से वो हर एक क्वेश्चन के ऊपर टीचर को अप्रोच करने की बजाय उसके खुद कंक्रीट सिचुएशन में उसको करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स स्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट्स, टीचर्स कैन टीच स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू सेपरेट द वर्ड प्रॉब्लम्स and understand the differences between related and unrelated information in the problem. Here is a conclusion of Piaget's theory application in mathematics. Piaget believed that if a child has a difficulty understanding a concept, it is because of the too rapid progress from the qualitative structure of the problem to the mathematical formulation. यानी अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है और चीज़ों के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्किप कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्किप कर रहा है, तो उसकी वजह से उसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी हो सकती है मैथमेटिक्स में। अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन ऑर्डर टू हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टीचर्स शुड फाइंड एन एक्टिव अप्रोच दैट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर स्पॉन्टेनियसली so they can learn and reconstruct their own concept instead of having the teachers to give them the answers directly. सो मैथमेटिकल टीचिंग जो है उसमें आप डायरेक्टली बच्चों को आंसर बताकर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग अप्रोच अकॉर्डिंग टू पियाजे। और पियाजे ने इस चीज़ को फोकस किया कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसे खुद इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ताकि उसकी जो लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग हो और अप्लाई कर सके वो न्यू सिचुएशंस में न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी इन मैथमेटिक्स। देखा कि जो चारों स्टेजेस हैं जो चारों स्टेजेस हैं पियाजे की थ्योरी की, हाउ दे आर अप्लाइड इन मैथमेटिक्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया है, एनलिस्ट किया है पियाजे की थ्योरी को, और अगेंस्ट उन हर एक पॉइंट के अगेंस्ट उसका क्रिटिसिज्म डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज जो बिलीफ है, स्टेज नहीं हम इसको यहाँ पर कहेंगे कि फर्स्ट बिलीफ जो पियाजे की थ्योरी के साथ रिलेटेड है, चिल्ड्रन स्टार्ट डेवलपिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि एक चीज़ जो है वो परमानेंट है। कोई भी चीज़ जो उनके सामने होती है उनके बच्चे के जहन में ये होता है कि वो परमानेंट है। जैसे आपने वीडियो में देखा, आपने वीडियो में ये कॉन्सेप्ट्स देखे हैं लेक्चर 7 में। पियाजे ओवरलुक्ड चिल्ड्रंस नीड फॉर मोटिवेशन, और इस स्टेज से रिलेटेड जो है वो इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि वो मोटिवेशन के ऊपर उसने इसको ओवरलुक किया है। चिल्ड्रंस मेमोरी कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड बिलीफ जो पियाजे की थ्योरी का है, दैट इज चिल्ड्रंस सेंसरी एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन देयर फर्स्ट 6 months ऑफ बर्थ। ठीक है, हम ये पियाजे ने अज्यूम किया है कि पहले 6 महीने के अंदर बच्चे की सेंसरी एबिलिटीज जो हैं वो काफ़ी बल्कि डेवलप हो चुकी होती हैं और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी होती है। नॉट ऑल लर्नर्स आर द सेम, दे माइट बी प्लेस्ड इन अ हायर और लोअर कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर यूनिक एबिलिटीज। जैसे हम इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक पूरी रेंज होती है एबिलिटीज़ की। कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल रेंज से बहुत बिलो होते हैं
और कुछ बच्चे उससे हाई एबिलिटीज़ के भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में पियाजे ने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। एवरी चाइल्ड विल एक्सपीरियंस द 4 स्टेजेस इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जाहिर है पियाजे का ये बिलीफ है कि इन चारों स्टेजेस को हर बच्चा जो है वो इसको फॉलो करेगा और इसी सेम ऑर्डर में ही फॉलो करेगा। पियाजे निग्लेक्टेड द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज हेरिडिटी, कल्चर एंड एजुकेशन। तो उसने इन चीज़ों, बाकी सारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, उनका इन्फ्लुएंस नहीं बताया कि कैसे ये इन चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो चारों स्टेजेस जो पियाजे ने बताई हैं उनको किस तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। फोर्थ बिलीफ, पियाजे सेपरेटेड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनटू डेफिनेट स्टेजेस। या जाहिर है एक प्रॉपर उसने 4 स्टेजेस बता दिए एक सीक्वेंस के अंदर। द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुड बी व्यूड एज अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये आया था। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, और ये जो अभी डिस्कशन होगी ये भी पर्टिकुलरली इन द रेफरेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। फर्स्ट जो इसमें हम 3 या 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्निंग और टीचिंग मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो इंडिविजुअल डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिफरेंसेस इन स्किल्स। All learners have their own strengths and weaknesses. They may be skilled in some aspect in mathematics, but may be incompetent in another area. Within mathematics जो different areas हैं, उसमें भी कुछ बच्चे किसी एक specific area में बहुत competent होते हैं, confident होते हैं, skilled होते हैं, लेकिन उसी mathematics के अंदर ही वो किसी और area में weak feel कर रहे होते हैं। तो इस वजह से टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो मोस्ट पावरफुल स्किल एरिया है बच्चे का उसको आइडेंटिफाई करें, उसको यूटिलाइज करें और दूसरे जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो अरिथमेटिक्स में बहुत अच्छा है बट ही इज़ वेरी पुअर एट अलजबरा, सो टीचर को अगर वो पता है कि उसकी अरिथमेटिक स्किल्स अच्छी हैं, वाइल टीचिंग अलजबरा वो उसकी अरिथमेटिक स्किल्स की एप्लीकेशन करवा सकता है और उसको यूज करवा सकता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द algebraic expressions. If teachers do not recognize the students' strengths and weaknesses, they might give students challenges. जाहिर है अगर टीचर को पता ही नहीं है कि उसकी क्लास में जो बच्चे हैं डिफरेंट, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं विद इन मैथमेटिक्स, तो उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उनका जो दिया हुआ काम होगा वो समटाइम्स बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। Students will face difficulty in the given task because they do not have the required skill. As a consequence, it may even influence the students' self-efficacy and create learned helplessness when students cannot accomplish the task. Hence, if teachers know what students are proficient in, then students will not have problems in learning new knowledge of mathematics. Mathematical problems require a set of pre-skills such as simple arithmetic, algebra and logical reasoning. So again यहाँ पर पूरा फोकस ये है कि teachers should know about the weaknesses and strengths of the child and they should use their strengths in order to develop their weaknesses, in order to improve their weaknesses. अगर इस तरह से टीचर उसको फॉलो नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है बच्चे की सेल्फ एफिकेसी के लिए, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये एक बड़ा थ्रेट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द प्रॉब्लम एंड सिंपल अरिथमेटिक टू ट्रांसफॉर्म द वर्ड प्रॉब्लम इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन। एज अ रिजल्ट, स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्किल्ड एट फॉर्मुलेटिंग अ मैथमेटिकल इक्वेशन will not be able to solve the word problem. Teachers should adjust their instructional practices according to the different pre-skills that the students have because these pre-skills play a big part in solving mathematical problems. So यहाँ पर एक बच्चे की वीकनेस को डिस्कस किया गया है कि अगर एक बच्चा जो है उसको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं जबकि उस बच्चे को मेंटल रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, यानी वो वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद उनको इक्वेशंस में कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाता, तो इस केस में क्या है कि बच्चे टीचर्स जो हैं वो उसकी प्री स्किल्स को उसको टीचर जो स्टूडेंट्स की हैं उनको यूज़ करना चाहिए और पहले उसे इस चीज़ के ऊपर सिखाना चाहिए कि हाउ टू मेक इक्वेशन फ्रॉम अ वर्ड प्रॉब्लम और उसके बाद वो उसको उसके सोल्यूशन की तरफ लेकर आएंगे।
ये था डिफरेंसेस इन स्किल्स। सेकेंड डिफरेंस जो अफेक्ट करता है लर्निंग एंड टीचिंग इन मैथमेटिक्स को, दैट इज अबाउट डिफरेंसेस इन बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम, इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। जिस कल्चरल बैकग्राउंड, जिस होम बैकग्राउंड जिससे वो बिलोंग करता है, अकॉर्डिंग टू दैट उसका बैकग्राउंड नॉलेज डिफरेंट होता है उसके अपने पीयर्स से। और टीचर जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि किस बच्चे के पास किस तरह का बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है, और उसके बैकग्राउंड नॉलेज और उसके बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए उसके लिए न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्रूशल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं हर एक बच्चे की, और इसी तरह से वो उसकी मैथमेटिक्स की फंक्शनैलिटी और सिंबल्स को याद रखने के लिए उसे हेल्प करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, स्टूडेंट्स कैन लर्न सिंपल अरिथमेटिक फ्रॉम ग्रोसरी शॉपिंग विच इन्वॉल्व्स डीलिंग विद मनी। Students can learn how to estimate the total cost of goods and how much change they should receive back. Therefore, when mathematical concepts are taught in a way that is related to their background knowledge, students will be able to interpret these concepts more easily. In addition, students are more motivated and engaged when their learnings of mathematics are related to their real world situations. This is because they find the acquired learnings very meaningful and important as they are applicable in their daily living. For instance, many students might find learning mathematics from a textbook boring or difficult. However, if mathematics are taught to solve real life problems such as calculating the interest gained in the bank, the total cost of living expenses, or the probability of winning in a poker game. सो यहाँ ये इस चीज़ को फोकस किया गया है कि अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम है इस तरह का, तो उनके लिए क्वेश्चंस को डिज़ाइन इस तरीके से करना चाहिए कि जो उनकी किसी न किसी तरह से रियल लाइफ ऐसी सिचुएशन के साथ रिलेट करते हो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, और उस तरह की सिचुएशन के साथ उनको क्वेश्चन पोज किया जाए। जैसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें प्रॉपर एक पूरी उन्होंने एक सिचुएशन बनाई होती है, सिचुएशन पोज करते हैं और बच्चा उसमें एक प्रॉब्लम में आ जाता है और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसको फाइंड आउट करता है। तो इस तरह से उसके लिए मैथमेटिक्स जो है वो एक इजी और अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट हो जाता है और वो रिलेट कर पाता है उसको अपनी डेली लाइफ के साथ। नेक्स्ट डिफरेंस जो अफेक्ट करता है लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स को, दैट इज डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट्स बच्चों के डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और मैथमेटिक्स के अंदर विद इन मैथमेटिक्स उनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इंटरेस्ट्स जो हैं वो एज के साथ भी वो रिलेट करते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है सिंपली दे हेट मैथमेटिक्स बिकॉज दे ऑलवेज फेस फेलियर विद मैथमेटिक्स which discourages them to continue to learn. However, having interests in mathematics can increase students' motivation to learn mathematics. और motivation जो है, this concept is an intrinsic motivation because students want to study mathematics out of their own interests. अगर एक बच्चा अपनी मर्जी के साथ मैथ्स पढ़ना चाहता है, it means उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, और आपको पता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो मैजिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन करती है वो किसी भी तरह से और कोई चीज़ नहीं कर सकती। एज अ रिजल्ट दे आर मोर इंगेज्ड इन द टास्क एंड वुड ट्राई देयर बेस्ट टू सॉल्व द चैलेंज। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स आर रिलेटेड विद देयर बिलीव्स ऑन देयर सेल्फ परसेप्शंस, देयर एबिलिटी एंड देयर एकेडमिक अचीवमेंट। यहाँ पर ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के जो इंटरेस्ट होते हैं बेसिकली वो किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। एक तो उनका जो बिलीफ है अपनी सेल्फ परसेप्शन के ऊपर, हाउ डू दे फील देमसेल्व्स, कि वो खुद को कितना कामयाब तस्वर करते हैं, इसके ऊपर उनका इंटरेस्ट बेस करता है। उनके अंदर एबिलिटीज़ कितनी हैं, इसके ऊपर उनका इंटरेस्ट बेस करता है, और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या है। अगर एक पुअर कंसिस्टेंटली पुअर एक स्टूडेंट है पुअर एकेडमिक अचीवमेंट बैकग्राउंड के साथ, तो उस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। Thus, it is important to develop interests in mathematics for students in order to increase their academic performance. अगर एज अ मैथ्स टीचर अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने में आप कामयाब हो जाते हैं मैथ्स में, तो यू आर अ गुड एंड सक्सेसफुल मैथ्स टीचर। नेक्स्ट डिफरेंस इज कल्चरल डिफरेंसेस।
डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के साथ बच्चे आते हैं, डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड के और एकेडमिक अचीवमेंट लेवल्स डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। तो इन सब डिफरेंसेस के साथ जब बच्चा एक क्लासरूम में बैठा होता है तो उनकी ऑल्सो देयर वैल्यूज ऑन मैथमेटिक्स माइट बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर कल्चर। When a culture values a particular subject such as mathematics, these children tend to be trained at a younger age at school and at home. ये इसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स में से कोई बैंकर है, बैंक में जॉब करता है, या मैथमेटिशियन है, मैथ्स का टीचर है ऑलरेडी, तो वो एक टेंडेंसी होती है उन स्टूडेंट्स के अंदर कि दे वुड लाइक एंड दे आर मोटिवेटेड फॉर द लर्निंग मैथ्स। तो बच्चे की जो कल्चरल डिफरेंसेस और उसका होम बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स रेगुलरली आर लाइकली टू हैव अ हाई लेवल ऑफ ऑटोमेटिसिटी बिकॉज दे हैव सफिशिएंट प्रैक्टिसेस ऑफ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चे जो हैं वो मैथ्स को डेली बेस पर जाकर प्रैक्टिस करते हैं घर में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी उतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उतनी ज़्यादा उनकी लर्निंग क्विक होगी। सो ये भी एक कल्चर है। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो एफिशिएंट होते हैं मैथ्स के अंदर और वो यूज टू होते हैं बच्चे को होमवर्क करवाते हुए कि वो काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं मैथ्स की लर्निंग को। सो अब उसका होम बैकग्राउंड जो है उसमें अगर मैथ्स लर्निंग को इन्हेंस किया जा रहा है तो डेफिनेटली क्लासरूम के अंदर उस बच्चे की लर्निंग अफेक्ट हो रही होगी पॉजिटिवली। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इफेक्ट्स लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, दैट इज सेल्फ एफिकेसी इन मैथमेटिक्स। व्हाट सेल्फ एफिकेसी इज? बेसिकली सेल्फ एफिकेसी कैन इन्फ्लुएंस द वे स्टूडेंट्स थिंक, अंडरस्टैंड एंड फील अबाउट देयर लर्निंग इन मैथ। सो ये एक सेल्फ एफिकेसी है। स्टूडेंट्स विद हाई सेल्फ एफिकेसी बिलीव दैट दे हैव द एबिलिटी एंड स्किल टू परफॉर्म वेल इन मैथ। ठीक है, अगर एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है और वो समझता है कि मेरे अंदर ऐसी एबिलिटीज़ और ऐसी स्किल्स हैं कि आई कैन डू मच बेटर इन माई मैथमेटिक्स, तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी उसकी हाई होगी और डेफिनेटली ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा उसकी लर्निंग एबिलिटी टुवर्ड्स मैथ्स। हैविंग द थॉट दैट दे आर कैपेबल इन सॉल्विंग मैथ, स्टूडेंट्स विल बी मोर मोटिवेटेड टू लर्न एंड स्टडी मैथ। बाय डूइंग सो, स्टूडेंट्स विल एनकाउंटर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी which fits their belief of their ability in math when their math improved after they studied. On the other hand, students with low self-efficacy in math will believe that they do not have the ability to perform well in math. और इस तरह का बच्चा जो लो सेल्फ एफिकेसी के साथ होता है वो कभी भी बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा मैथ्स में। सेकेंड पॉइंट जो सेल्फ एफिकेसी में हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट असेसिंग स्टूडेंट्स सेल्फ एफिकेसी। हाउ टीचर कैन नो दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी अमंग स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए इस चीज़ को जानना कि क्या उनके स्टूडेंट्स जो हैं दे आर कॉन्फिडेंट इनफ इन लर्निंग मैथमेटिक्स और नॉट। वन ऑफ द वेज टू असेस स्टूडेंट्स सेल्फ एफिकेसी इज टू कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट एंड हैव स्टूडेंट्स to rate their self efficacy for each statement। यानी हम एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चनर बना लें मैथमेटिक्स की लर्निंग से रिलेटेड जो कि फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट हो। फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट मींस कि लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो एक आगे एक सैम्पल स्टेटमेंट दी हुई है, आई नो व्हाट इंफॉर्मेशन डू आई नीड इन ऑर्डर टू फाइंड द सरफेस एरिया फॉर द पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर उसको पता है कि मुझे ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पैरेललोग्राम का एरिया जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए, तो इट मीन्स कि उसको वो सेल्फ एफिकेसी उसकी, अगर वो इसको येस टिक करता है तो इट मीन्स ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। और ये चूंकि स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से की गई है, फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद आई नो। तो आई नो के साथ जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट है। What we can do and how we can develop students self efficacy। बेंडूरा ने इसके ऊपर बात की और प्रपोज किया कि 4 मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एफिकेसी। फर्स्ट इन्फ्लुएंस है इन स्टूडेंट्स मास्टरी एक्सपीरियंसेस। फॉर इंस्टेंस व्हेन स्टूडेंट्स सक्सीड इन अ मैथ टेस्ट देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट एरिया ऑफ मैथ विल गो अप।
ये इसी तरह से है कि जब आप एक दफ़ा एक टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट इन दैट सब्जेक्ट. तो this will have a positive effect on students' future performance, which students will be more confident that they have to ability to solve it when facing similar questions. तो जब एक बच्चा मास्टरी एक्सपीरियंसेस के साथ होता है, बार बार वो टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती जाएगी. द सेकेंड इन्फ्लुएंस इज स्टूडेंट्स वेरियस एक्सपीरियंसेस. बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, especially peers with similar ability, students' self-efficacy in doing a particular task will increase. जब बच्चा देखता है कि ये क्वेश्चन मेरे साथ बैठे हुए बच्चे ने कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और उसकी एफर्ट्स इंक्रीज हो जाती हैं, और इस तरह से वो स्किल को एक्वायर कर लेता है. When the teacher introduced a new topic in math, which students are uncertain about the level of difficult for that topic, by observing their peers completing the questions, their level of confidence in understanding and completing the question in the new topic will go up. Moreover, even watching a documentary on mathematicians doing maths improve students' math self-efficacy. यानी अगर आप बच्चों को टाइम टू टाइम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते रहें जो कि सक्सेसफुल मैथमेटिशियंस के ऊपर बेस कर रही हों, या जिसमें ऐसे बच्चे दिखाए जा रहे हों, ऐसे लोग दिखाए जा रहे हों जो कि मैथ्स को ईजिली सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट कैन कंट्रीब्यूट इन डेवलपिंग स्टूडेंट्स सेल्फ एफिकेसी. थर्ड इन्फ्लुएंस जो बेंडूरा ने फोकस किया वो है सोशल परसुएशन. दिस कुड बी अ पॉजिटिव फ्रेज फ्रॉम द पीपल विच द स्टूडेंट्स इंटरैक्ट विद, सच एज देयर पेरेंट्स, peers and teachers. Positive feedback from the teacher, such as you are getting better in solving algebra questions, will increase a student's confidence in solving algebra questions. तो जितनी ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन अपनी सराउंडिंग से, अपने रिलेटिव से मिलेगी, उतना ज़्यादा उसमें सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती जाएगी. द फोर्थ इन्फ्लुएंस इज स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल स्टेट. दिस रेफर्स टू स्टूडेंट्स इमोशनल रिएक्शन टूवर्ड्स द सिचुएशन. For example, a student might feel that her failure of a maths test is due to her inability of math, which in reality is a result of her anxiety. तो एक्चुअली अगर उसका रिजल्ट जो है वो पुअर आया है मैथ्स टेस्ट में एंजाइटी की वजह से, तो जबकि एक्चुअली वो समझ ये रहा होता है कि मेरी इनएबिलिटी है मैथ में, तो इस तरह से उसकी सेल्फ एफिकेसी लो भी हो सकती है. इन दिस केस स्टूडेंट मिसजज्ड हर एबिलिटी and lowered her confidence in math. Next efficacy जो है वो that is about teacher efficacy. Teachers' teaching efficacy refers to the belief that they can make a significant change in their student, such as students' academic performance, self-efficacy, motivation, attitude and interest in learning. सेम जिस तरह से स्टूडेंट्स की सेल्फ एफिकेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैथ्स की लर्निंग के लिए, इसी तरह से टीचर्स को भी सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ एफिकेसी उनकी भी डेवलप होनी चाहिए, दैट हाउ मच दे फील कॉन्फिडेंट इन टीचिंग पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट. जितना ज़्यादा एक टीचर कॉन्फिडेंट होगा कि मैं ये पढ़ा सकता हूँ एंड आई कैन डू इट, तो उतना ज़्यादा उसकी सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज होती जाएगी. इन ऑर्डर फॉर टीचर्स टू एस्टैब्लिश अ हाई लेवल ऑफ टीचिंग एफिकेसी, they need to have a positive attitude, rich pedagogical knowledge and content knowledge toward their teaching subject. अच्छा, टीचिंग एज अ टीचर जब हम सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं तो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाना काफ़ी नहीं होता. टीचर्स की सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका पेडागोजिकल नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट और अप टू डेट होना चाहिए, और कंटेंट नॉलेज, पेडागोजिकल नॉलेज लाइक टीचिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, और कंटेंट नॉलेज हम कहते हैं कि उसको मैथ आता हो. आप मैथ का टीचर तब हो सकते हैं जब आप में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, लाइक आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ डेवलप हुआ हो, इसी तरह से आपके अंदर आपको पता हो कि हाउ टू टीच मैथमेटिक्स आप ये जानते हो, और इसके साथ साथ आपको मैथ्स आना भी बहुत ज़रूरी है. एक मैथ्स का टीचर अच्छा वही हो सकता है जिसको मैथ आता हो, मैथ भी आता हो और मैथ पढ़ाना भी आता हो और एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो.
थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है लर्निंग और टीचिंग मैथमेटिक्स को, दैट इज सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। कुछ लोग जो हैं वो, कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, और पीपल माइट थिंक दैट स्टूडेंट्स लो मैथमेटिक्स अचीवमेंट इज ड्यू टू दैट लो एबिलिटी, देयर लो एबिलिटी इन मैथ और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट स्टडिंग। जनरली जाहिर है हम यही कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, इस वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं। बट दे मे नॉट बी द केस इन ऑल सिचुएशंस। समटाइम्स क्या होता है जी कि स्टूडेंट्स लो मैथमेटिक्स अचीवमेंट माइट बी ए रिजल्ट ऑफ नॉट यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज टू स्टडी ड्यू टू देयर लैक ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग स्किल्स। यानी वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं रहे होते, उनकी लर्निंग सेल्फ रेगुलेटेड नहीं होती, जिसकी वजह से वो मैथ्स में कॉन्सिक्वेंसेज फेस कर रहे होते हैं। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इज स्टडीड इज स्टूडेंट्स एबिलिटी टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर लर्निंग फ्रॉम एडवांस प्लानिंग टू हाउ दे इवेलुएट देयर ओन परफॉर्मेंस आफ्टरवर्ड्स। तो कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट लर्नर्स होते हैं, वो अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अपने पढ़े हुए को असेस कैसे करना है कि मुझे ये आ गया, और इवेलुएट कैसे करना है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं दे आर गुड एट मैथमेटिक्स। यहाँ पर भी देर आर 3 कोर कंपोनेंट्स हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के। फर्स्ट है इसका कंपोनेंट मेटाकोग्निटिव अवेयरनेस। ये वही चीज़ है मेटाकोग्निशन, हाउ टू डू इट, विच रेफर टू हाउ स्टूडेंट्स सेट देयर गोल एंड देयर प्लान ऑफ रीचिंग दैट गोल। यानी वो अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाकोग्निटिव। The second one is strategies used, which refer to a list of self-regulated strategies that students could apply to their studying. Skilled learners use more effective strategies when they are learning. और third जो इसका component है, the last one is motivation control, which is students' ability to set goals and their positive belief on their academic skills and performance. The ability of self-regulated learning has a big impact on students' mathematical achievement. Students will use better strategies and have a better understanding on how to study mathematics when their self-regulated learning skills improved, which will increase this mathematical achievement. तो जितनी ज़्यादा self-regulated habits होंगी बच्चे की, उतना अच्छा वो mathematics learner होगा।